السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کے 10th کلاس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارٹ فرسٹ حصہ اول میں سبق نمبر 6 انحراف نور ریفریکشن آف لائٹ، اس کا پارٹ 2، اس میں ہم انحراف نما یہ سمجھنے والے ہیں بچوں۔ انحراف نما یعنی انگلش میں اس کے کہتے ہیں ریفریکٹیو انڈیکس، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے، جیسے اس میں ہم پہلے ویڈیو کے آگے والا حصہ دیکھنے والے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب روشنی ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تب تھوڑا سا مڑ جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں انحراف نور۔ اچھا، مڑتی ہے یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کتنا مڑتی ہے، دیکھو اب اس میں کیا سمجھنا ہے ہم کو اس ویڈیو میں، وہ روشنی کی شعاع کتنا مڑتی ہے، اور اچھا پہلے ویڈیو میں ہم جو ہے کیوں مڑتی ہے اس کا جواب دیکھ لیے۔ روشنی کی شعاع کیوں مڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا مڑتی ہے اور کدھر مڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے، کتنا مڑتی ہے اور کدھر مڑتی ہے، کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نور کی شعاع یہ شیشے کا مستطیل ہے، یہ ہے نا، یہ یہاں سے داخل ہو رہی ہے، اب مڑیں گے کدھر، ادھر کیا ادھر، دونوں میں سے کدھر، تو اس کا بھی ایک اصول ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی پورشن میں کور کرنے والے ہیں۔ تو آخر تک ویڈیو کو دیکھو بچوں، بیچ میں سے ویڈیوز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر انحراف نما کو ہم سمجھیں گے۔ نور کی شعاع کے مختلف واسطوں سے گزرتے وقت شعاع کی سمت میں تبدیلی، جھکاؤ مختلف ہوتی ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اس تبدیلی کا تعلق واسطوں کے انحراف نما سے ہوتا ہے۔ مختلف واسطوں کے لیے یا ایک ہی واسطے میں مختلف رنگوں کی نور کی شعاؤں کے لیے انحراف نما مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چند مادی واسطوں کا خلا کی نسبت سے انحراف نما ذیل کی جدول میں دیا گیا ہے۔ کسی بھی مادی واسطے کا خلا کی نسبت سے انحراف نما مستقل انحراف نما کہلاتا ہے۔ انحراف نما واسطے میں نور کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی واسطے کا انحراف نما کس پر منحصر ہوتا ہے، کس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، وہ اس کا انحراف نما کتنا ہوگا، زیادہ ہوگا کیا کم ہوگا، وہ سب کا سب کس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، نور کی رفتار پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نور کی رفتار کتنی ہے اس واسطے میں، جیسے میں آپ سے کہوں کانچ کا انحراف نما کتنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کانچ میں نور کی رفتار کتنی ہے۔ اچھا، ہیرے کا انحراف نما معلوم کرنا ہے تو یہ ہم کو پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ ہیرے میں نور کی رفتار کتنی ہے۔ مطلب کہ ریفریکٹیو انڈیکس جو ہوتا ہے اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن دا ویلوسٹی آف لائٹ ان دیٹ پرٹیکولر میڈیم۔ تو انحراف نما نور واسطے میں نور کی رفتار پہ منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اور ایک چیز آپ کو معلومات دی ہوئی ہے باکس میں، سائن آئے بٹے سائن آر مساوی مستقل، اس کو انحراف نما کہا جاتا ہے۔ اس کو یہاں پہ این سے ظاہر کیا ہوا ہے، ویسے یونانی حرف میو سے بھی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بک میں چونکہ این سے دیا ہوا ہے، یہیں سے این سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیے مستقل این پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے۔ اس قانون کو سنیل کا قانون بھی کہتے ہیں، سنیلس لا۔ اب انشاءاللہ آپ ہائر کلاسز میں 11th-12th میں اس کو اور ڈیپلی اسٹڈی کرنے والے ہیں، اور اس کو زیادہ آپ کو براڈ کنسیپٹ رہے گا اس کا، سنیل کا قانون۔ اس کو سنیل کا قانون کہتے ہیں، یعنی کہ جب سائن آئے بٹے سائن آر جو ہوتا ہے ہمیشہ مستقل ہوتا ہے۔ تو دو واسطوں کو جدا کرنے والے خط پر شعاع وقوع I=0 اسی خط پر آگے بڑھتی ہے R=0۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، I=0 R=0، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے کہ اب یہ شیشے کا مستطیل، اب روشنی کی شعاع ایسی نہیں آئی، اس کے اوپر ایسے داخل نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، ایسی نہیں، بلکہ بالکل سیدھی ایسی، تو اس وقت آئے جو ہوگا یعنی زاویہ وقوع وہ کتنا ہوگا، 0 ہوگا، ہے نا۔
یعنی عمود کے بیچ میں اور شعاع وقوع کے بیچ میں کوئی بھی زاویہ نہیں ہے، رائٹ. تو وہ کیا ہوگا، بالکل ایسی عمودی سمت سے وہ شعاع اگر داخل ہو رہی ہے شعاع وقوع، تو زاویہ وقوع صفر ہوگا. تو اس وقت یہ اس میں سے بھی سیدھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس میں سے بھی سیدھی گزر جائے گی. تو جب I=0 ہوگا تو ہمیشہ R= بھی 0 ہی ہوگا. یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے. چلیے اب اس کو تھوڑا اور آگے بڑھتے اب ہم. اب یہاں پہ آپ کو مختلف اچھا یہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں گے کہ ہاں مطلق انحراف نما کسے کہتے ہیں. اب آگے بھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ہم کو. مطلق انحراف نما، پہلے تو انحراف نما سمجھنا ہے ہم کو. انحراف نما کسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ مطلق انحراف نما کسے کہتے ہیں. چلیے تو اس کے لیے یہاں پہ پہلے جدول دیکھ لیجیے آپ. یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوا، یعنی کہ جس میں سے روشنی گزر سکتی ہے، سب واسطے ایسے دیے گئے ہیں نا، ہوا، برف، پانی، الکوہل، ہر ایک کا سامنے دیا ہوا ہے انحراف نما 1.13. تو یہاں پہ سب سے کم انحراف نما آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا ہے. جتنے مادی واسطے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں سب کا دیکھ رہے ہیں آپ. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہیرا ہے، اس کا انحراف نما ہے 2.42، یعنی 2.42 شیشے ہیرے کا انحراف نما ہے، اور سب سے کم ہوا کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب انڈائریکٹلی ہم یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ ہیرے میں یہ جتنے مادی واسطے آپ کو نظر آ رہے ہیں جدول میں، جتنے بھی مادی واسطے دیے ہوئے ہیں نا، اس میں سب سے کم روشنی کی جو رفتار ہے وہ ہیرے میں ہوتی ہے. سب سے کم روشنی کی رفتار جو ہوتی ہے وہ ہیرے میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ہوا میں ہوتی ہے. پتہ کیا چلا کہ جس کا انحراف نما جتنا زیادہ ہوگا روشنی کی رفتار اس میں اتنی ہی کم ہوگی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ سے ہم کو تھوڑا سا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہیرے کا اور کمپیریزن ہوا اور کانچ کا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کانچ یعنی شیشہ. تو شیشے کا جو انحراف نما ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نا، کراؤن شیشہ، تو 1.52 یعنی 1.5 ہے. عام زبان میں بولتے ہیں نا وہ 1.5، تو یہ 1.5 ہے اور یہ تقریباً 2.5 ہے. تو شیشے کا انحراف نما کم ہے اور اس کا ہیرے کا زیادہ ہے. مطلب دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو روشنی کی رفتار ہیرے میں کم ہے اور شیشے میں زیادہ ہے. تو اور آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہاں پہ. دیکھیے یہ پہلا واسطہ، یہ دوسرا واسطہ، یہ ہوا ہے اور یہ شیشہ ہے. اچھا، اس میں روشنی کی رفتار V1، ٹھیک ہے، واسطہ پہلا واسطہ ہے یہ، اور یہ دوسرا واسطہ. اس میں ہوا میں روشنی کی رفتار V1 اور یہ دوسرا واسطہ ہے، اس میں روشنی کی رفتار V2. تو اب ہم انحراف نما کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہاں پہ دیکھیے یہ دو فرض کیجئے کہ شکل 6.3 میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق واسطہ 1 میں نور کی رفتار V1 اور واسطہ 2 میں نور کی رفتار V2 ہے. یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں. تو پہلے واسطے کی بنسبت دوسرے واسطے کا انحراف نما دیکھیے اس طرح سے. یہاں پہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، یہاں پہ یہ دونوں مختلف ہیں نا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ اس طریقے سے لکھنا چاہیے، تھوڑا سا مس پرنٹ ہو گئی. آپ اس طرح سے لکھیں گے، دیکھیے یہاں پہ دوسرے واسطے کا انحراف نما پہلے واسطے کی نسبت. تو یہ طریقے سے لکھیں گے آپ. تو اس کا جو ضابطہ ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایسے دیا ہوا ہے. یعنی دوسرے واسطے کا انحراف نما آپ معلوم کر رہے ہیں پہلے واسطے کی نسبت سے. تو اس میں ہوگا پہلے واسطے میں نور کی رفتار بٹے دوسرے واسطے میں نور کی رفتار. یعنی آپ مثال کے طور پہ شیشے کا انحراف نما معلوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیشے کا انحراف نما معلوم کر رہے ہیں. اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے انگلش میں G لکھا جاتا ہے شیشے کے لیے. شیشے کا انحراف نما کس کی بنسبت سے؟ ہوا کی نسبت سے یا ویکیوم کی نسبت سے، یعنی خلا کی نسبت سے. تو اس کو ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہوا اور خلا میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دیکھیے انحراف نما میں اس طرح سے. تو پھر اب کیا ہوگا، یہ
किस में, हवा में नूर की रफ्तार, हवा में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार। तो इसके तहत आप मालूम कर सकते हैं ये। अब एक एग्जांपल यहीं पे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे फर्ज कीजिए आपको दिया हुआ है हवा में नूर की रफ्तार है 3 ज़रा ये मिटा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड है ना। ये किस में रफ्तार है, हवा में। अच्छा, शीशे में नूर की रफ्तार है 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड। अब आप किसका मालूम कर रहे हैं, इन्हिराफ नुमा, शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं। किसकी निस्बत से, हवा की निस्बत से। इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं आप शीशे का, और किसकी निस्बत से, हवा की निस्बत से। तो इसमें क्या होगा, हवा में नूर की रफ्तार बटे शीशे में नूर की रफ्तार, ठीक है। मतलब शीशे का इन्हिराफ नुमा अगर आप मालूम कर रहे हैं तो ये शीशे में नूर की रफ्तार है वो बटे में आएगी, नीचे आएगी, ठीक। तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। देखिए इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना, देखो बच्चों, कि जिसका इन्हिराफ नुमा हम मालूम कर रहे हैं तो उसमें जो है तो उसको नूर की रफ्तार उसको बटे में लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आप शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं हवा की निस्बत से, तो शीशे में नूर की रफ्तार काय में आएंगी, यहाँ बटे में आने वाली। इस चीज़ को याद रखना है। ये बार बार बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, इधर का उधर उधर का इधर कर लेते बच्चे, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि शीशे का इन्हिराफ नुमा आप मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे शीशे में नूर की रफ्तार ये बटे में आएगी, बटे में आएगी, ऊपर नहीं आएगी। और हवा में नूर की रफ्तार ये ऊपर आएगी। इस तरह से, यानी आम ज़बान में और क्लियर करूँ तो अगर आप ये दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं पहले वास्ते की बनिस्बत, तो फिर दूसरा वास्ता कहाँ आएगा, ये बटे में है, दूसरा वास्ता, उसमें नूर की रफ्तार। चलिए, अच्छा, अब जो है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किधर मुड़ती है ना, किधर मुड़ती है नूर की शुआ, तो इसका जवाब हमको यहाँ पे मालूम होने वाला है। अगर पहला वास्ता खला हो तो अच्छा ये भी चीज़ देखना है। अच्छा, अगर आपको वास्ता शीशा नहीं, शीशे के अलावा कोई दूसरा है या तीसरा कोई वास्ता है या चौथा कोई वास्ता है, ठीक है, लेकिन उसका आपको मुतलक इन्हिराफ नुमा मालूम करना है। कौन सा इन्हिराफ नुमा, मुतलक इन्हिराफ नुमा। तो उसमें आपको ऊपर हमेशा पहला वास्ता जो लिया जाता है वो खला होती है, खला, ठीक है, खला। और नीचे जो भी वास्ते का आप मुतलक इन्हिराफ नुमा मालूम कर रहे हैं वो होता है, ठीक है। जैसे आप हीरे का मालूम कर रहे हैं मुतलक इन्हिराफ नुमा, तो उसमें सबसे ऊपर किसकी रफ्तार आएगी, खला की रफ्तार, खला में नूर की रफ्तार बटे इधर हीरे में नूर की रफ्तार। इस तरह से इसे कहते हैं मुतलक। लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि दो वास्तों के डायरेक्ट नाम दिए हुए हैं, जैसे रोशनी की शुआ पानी से कांच में दाखिल हुई, पानी से शीशे में दाखिल हो गई। तब यहाँ पे देखिए पानी एक वास्ता, शीशा दूसरा वास्ता। तो यहाँ पे आपको जब शीशे का इन्हिराफ नुमा मालूम करेंगे आप, ठीक, पानी की निस्बत से, तो पहला वास्ता पानी, दूसरा वास्ता शीशा, तो एक की निस्बत दूसरे का इन्हिराफ नुमा आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मुतलक इन्हिराफ नुमा किसी शय का मालूम करते हम तो वो हमेशा किसके मुकाबले में होता है, वो खला के मुकाबले में होता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो आएगा ये खला में नूर की रफ्तार आएगी। यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, फिर उस वक्त खला में नूर की रफ्तार आएगी। चलिए,
आप देखिए यहाँ पर हमको देखिए बताइए तो भला, अगर दूसरे वास्ते का इनराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत ये इस तरह से और तीसरे वास्ते की बनिस्बत 3 न्यू 2, ठीक है, तब 3 न्यू 1 का मतलब क्या है, इसकी कीमत कितनी होगी। हाँ देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि तीसरे वास्ते की बनिस्बत पहले वास्ते की इनराफ नुमा। ये किस तरह से मालूम करेंगे, ये होगा पहले वास्ते में नूर की रफ्तार, है ना, पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे तीसरे वास्ते में नूर की रफ्तार, ठीक है। हाँ, इसको अगर पहले वास्ते को हम V1 से इंडिकेट करें, V1, तो V1 अपॉन V3, इस तरह से इसकी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे शक्ल के थ्रू आपको बताया हुआ है कि किस तरह से नूर की शुआ रास्ता तब्दील करती है। देखिए ये लतीफ़ वास्ता और ये कसीफ़ वास्ता, अगर ऐसी उमूदी आ रही तो सीधी चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये वाला, जब नूर की शुआ कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। कसीफ़ वास्ते से, यानी मिसाल के तौर पे कांच या शीशे में से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है हवा में, तो उमूद से परे हट जाती है वो, ठीक है। ये उमूद है, ये उमूद है, यहाँ से दाखिल होती है और निकलते वक्त ऐसे उमूद से परे हट जाती, दूर हट जाती है वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में जब दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुकती है वो, है ना, ये इधर से इधर, है ना, समझ में आ रहा है ना आपके। क्या इसको बड़ा करके दिखाएंगे, हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लतीफ़ वास्ते से ये लतीफ़ वास्ता है, कसीफ़ वास्ते में दाखिल हो रही, तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये उमूद है कि इधर से आ रही और उमूद की जानिब झुक रही, ठीक है, उमूद की जानिब झुक रही है, ऐसी इधर से आके ऐसी झुक रही उमूद की जानिब। लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होते वक्त नूर की शुआ क्या होती है, उमूद की जानिब झुकती है। और उसी के अगेंस्ट, उसी के बरअक्स क्या होती है, कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद से परे हट जाती है। ये चीज़ आपको जहन में रखना है हमेशा। सितारों की झिलमिलाहट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये टॉपिक इंशाल्लाह देखेंगे। पहला सवाल, क्या आपने कभी मौसम गर्मा में गर्म सड़क पर पानी की मौजूदगी यानी सुराब का मुशाहिदा किया है? तो इसका जो जवाब है आगे यहाँ पे तफसील से हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा सवाल है, सरमा के दिनों में यानी सर्दी के दिनों में कई बार लोग आग जलाते हैं, क्या आपने आग की दूसरी जानिब की चीज़ें हिलती हुई देखी हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आपको एग्ज़ाम में ये साइंसी वजूहात बयान कीजिए के तहत सवाल आ सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसका जवाब की पूरी वजाहत यहाँ पे आगे की हुई है। देखिए, मकामी फ़िज़ाई माहौल का इन्हिराफ नूर पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। दर्जे बाला दोनों मिसालों में रास्ते के करीब और आग के शोलों के ऊपर और आसपास की हवा गर्म होने की वजह से लतीफ़ होती है यानी हल्की हो जाती है और इसका इन्हिराफ नुमा भी कम होता है। किसकी वजह से? आग के शोलों के ऊपर की और रास्ते के करीब, यानी कि गर्म रास्ते हैं और आग के शोले, ज़ाहिर बात है कि वहाँ भी गर्मी होती है, तो वहाँ की हवा गर्म होने की वजह से क्या होती है, लतीफ़ होती है और इसका इन्हिराफ नुमा भी कम होता है। बुलंदी के साथ लताफत कम होती जाती है यानी कसाफत बढ़ती जाती है बुलंदी के साथ साथ और इन्हिराफ नुमा बढ़ता जाता है। पहली मिसाल में, यानी पहले जो सवाल दिया हुआ था आपको, यानी क्या आपने कभी मौसम गर्मा में गर्म सड़क पर पानी की मौजूदगी सुराब का मुशाहिदा किया है? तो दूर से देखने के बाद ऐसे महसूस होता है गर्मियों के मौसम में कि कहीं दूर पानी मौजूद है, सुराब है। सुराब यानी धोखा, जिसे, है ना, इस्तिलाही माने में इसको कहा जाता है धोखा।
सुराब। तो पहली मिसाल में इस बदलते हुए इन्हिराफ नुमा की वजह से इन्हिराफ नूर के क़वानीन के मुताबिक नूर की शुआओं की सिमत मुसलसल बदलती रहती है, जैसा कि शक्ल 6.5 में दिखाया गया है। ये वाली शक्ल देखिए। दूर की अशिया की जानिब आने वाली नूर की शुआएं उस शय के ज़मीन पर अक्स की जानिब से आती हुई दिखाई देती हैं, इसे ही सुराब कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये शुआएं ऐसी हो रही हैं ना, इन्हिराफ मुनहरिफ होके पहुँच रही हैं और यहाँ पे जो भी देखने वाला है उसकी आँखों से टकराती हैं। तो अब ये शुआएं जो है ख़त मुस्तकीम से हमको ऐसी निकलती हुई नज़र आती हैं। तो जो शय यहाँ पे है तो ऐसे नज़र आता है कि वो शय यहाँ पे है ना। दरअसल वो शय यहाँ होती है तो ऐसे नज़र आता है वो शय यहाँ पे है ना। और ये हमको शुआएं यहाँ से निकलती हुई नज़र आती हैं और यहाँ पे आँखों से टकराती हैं। तो उसका जो साया है वहीं से ऐसे महसूस होता है कि वो शुआएं आ रही हैं, इसलिए इसे सुराब कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अक्स की जानिब से आती हुई दिखाई देती हैं। अब दूसरी मिसाल में देखिए, दूसरी मिसाल में बदलते हुए इन्हिराफ नुमा की वजह से नूर की शुआओं की सिमत में होने वाली तब्दीली की वजह से अलाव की आग के उस पार की चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि लोग आग जलाते हैं तो आग जलाते वक्त उसके पीछे का जो मंज़र है वो हिलता हुआ नज़र आता है। ये भी साइंसी वजूहात में आमतौर पे पूछा जाता है सवाल। तो किस वजह से होता है ये देखिए, इन्हिराफ नुमा की वजह से, बदलते हुए इन्हिराफ नुमा की वजह से, नूर की शुआओं की सिमत में होने वाली तब्दीली की वजह से अलाव के आग के उस पार की चीज़ें हमको हिलती हुई नज़र आती हैं। अब देखिए और एक चीज़ यहाँ पे है, सितारों की झिलमिलाहट में फ़िज़ा का बड़े पैमाने पर होने वाला इन्हिराफ नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। तो साइंसी वजूहत में ये पूछा करता है आमतौर पे सवाल कि सितारे हमें झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं, है ना, ये एक सवाल पूछता है। दूसरा एक सवाल ये भी पूछा करता है कि तारे का मजाजी मकाम यानी जो बज़ाहिर नज़र आता है, हकीकी मकाम की बनिस्बत किसी कदर बुलंदी पर महसूस होता है। ये दो सवालात तारों से मुताल्लिक़ आते हैं। देखिए साइंसी वजूहात बयान कीजिए, तो इन दोनों सवालात को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखिए, तारे अज़ ख़ुद रोशन होने की वजह से चमकते हैं और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में रात में हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर होने के बायस रोशनी के नुक़्ते मंबों की मानिंद दिखाई देते हैं। नुक़्ते का मतलब तो आपको मालूम है, नुक़्ता। मंबा यानी कोई चीज़ जहाँ से हमको हासिल होती है उसे कहते हैं मंबा, यानी ज़रिया, किसी चीज़ का ज़रिया। तो जहाँ से हमको रोशनी हासिल होती है उसे कहते हैं हम मंबा नूर यानी नूर का ज़रिया। तो ये जो हमको होते हैं ये रोशनी के नुक़्ते मंबों की मानिंद दिखाई देते हैं, यानी ऐसे नुक़्ते जहाँ से ये रोशनी खारिज हो रही है, हासिल हो रही है, राइट। माहौल में हवा का इन्हिराफ नुमा ज़मीन की जानिब आते हुए बढ़ता जाता है, क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफ़ा होता जाता है ना। अब जैसे खला से नीचे जैसे जैसे आएंगे ज़मीन से करीब तो हवा की कसाफत में इजाफ़ा होता जाता है। फिर सितारों की रोशनी का फ़िज़ा में जब इन्हिराफ होता है तो तारों की रोशनी उमूद की जानिब झुकती है। जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है कि जब रोशनी जो है लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुकती है, यह उमूद है ना। शीशे की मुस्ततील की मिसाल से हमने समझा था, शीशे का मुस्ततील, यहाँ से नूर की शुआएं जा रही हैं, तो ये लतीफ़ वास्ते में है और यहाँ से अब कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती हैं तो इधर मुड़ जाती हैं वो, है ना। और ये उमूद है, तो उमूद की जानिब मुड़ जाती हैं वो कभी भी, लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होते वक्त। तो फिर ये क्या होता है देखिए,
तारों की रोशनी उमूद की जानिब झुकती है। ठीक है, शक्ल 6.6 के मुताबिक तारा अपने हकीकी मकाम से किसी कदर बुलंदी पर महसूस होता है। ये वाली शक्ल देख रहे हैं आप। ये आप देख रहे हैं, ये तारा अपने हकीकी मकाम पर है और इसका ये जो मजाजी मकाम है, मजाजी मकाम यानी जो बज़ाहिर नज़र आता है, जो हकीकी नहीं है, उसे कहते हैं मजाजी। तो उसका जो मजाजी मकाम है थोड़ा बुलंद नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए, ये यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे हम। हाँ, ये इसकी रोशनी ऐसे होके मुनहरिफ हो रही है ना, उमूद की जानिब झुक रही, ऐसे आ रही है वो, देखिए। ठीक है, अब देखने वाला जो नाजिर है उसको ख़त मुस्तकीम शुआएं यहाँ से आती हुई नज़र आती हैं, ख़त मुस्तकीम में यहाँ से आती हुई नज़र आती हैं। तो ये इसका मजाजी मकाम है। ऐसे महसूस होता है कि सितारा यहाँ पे है, राइट, जबकि दरअसल सितारा यहाँ पे है। तो ये क्यों होता है कि ज़मीन से करीब आते हुए इन्हिराफ नुमा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कसाफत भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इन्हिराफ नुमा भी बढ़ता जाता है ना, इन्हिराफ नुमा भी बढ़ता जाता है। हाँ, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे भी देख रहे हैं, देखिए आप इस शक्ल के अंदर देखिए, यहाँ पे ज़मीन, फ़िज़ा का इन्हिराफ नूर पर असर, यहाँ पे हकीकी मुकाम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इधर किस तरह से फ़िज़ाई तहें होती हैं, ये ज़मीन है, और ये किस तरह से ये शुआएं ऐसी होके फिर ऐसी होके मुनहरिफ होके यहाँ पे ज़मीन पे पहुँचती हैं, जबकि ज़मीन पे खड़े होकर जो नाजिर यानी देखने वाला, उसे ऐसे महसूस होता है कि ये शुआएं ख़त मुस्तकीम से आ रही है, यहाँ से आ रही हैं ख़त मुस्तकीम से। ठीक है, तो उसको ये मजाजी मकाम यहाँ नज़र आता है ना, उसको मजाजी मकाम यहाँ पे नज़र आता है, जबकि असल में हकीकी मकाम यहाँ पे होता है उसका। तो इन्हिराफ नूर की वजह से शुआएं ऐसी मुनहरिफ होके पहुँचती हैं, लेकिन नाज़िर को वो सीधी आती हुई नज़र आती हैं ख़त मुस्तकीम से। तो ये मजाजी में उफ़क़ यानी जो है आसमान पे, जहाँ पे आप ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे आसमान टिका हुआ नज़र आता है आपको, है ना, तो उसे कहते हैं उफ़क़। फिर उसके बाद देखिए आप देखिए सितारे झिलमिल करते हुए नज़र आते हैं ना, तो ये हमको समझना है। पहले हम ये तो समझ चुके हैं अभी कि किस तरह से सितारे या तारे का मजाजी मकाम बुलंद नज़र आता है ना। अभी हमने ये चीज़ देखी यहाँ पर कि तारे का मजाजी मकाम हमको बुलंद नज़र आता है, हकीकी मकाम से बुलंद नज़र आता है। अब ये देखना है कि तारे झिलमिल क्यों करते हैं, तारे क्यों झिलमिलाते हैं, ये इसकी साइंसी वजह समझना है अब हमको। अब देखिए क्या है, ये सितारों का ये मजाजी मकाम भी साकिन नहीं होता, बल्कि इसमें हल्की सी तब्दीली वाक़ई होती रहती है। हवा के मुसलसल मुतहर्रिक होने और इसके दर्जे हरारत और कसाफत में तब्दीली के बायस फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहती है। इसलिए किसी इलाके की हवा का इन्हिराफ नुमा क्या होता है, देखिए मुसलसल बदलता रहता है। ये इम्पोर्टेंट है ना, क्या होता है, मुसलसल बदलता रहता है इन्हिराफ नुमा, और तारों के मकाम भी बदलते नज़र आते हैं। तो फिर इस तरह से इन्हिराफ नुमा में तब्दीली के बायस तारे का मजाजी मकाम और रोशनी मुसलसल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो सितारे झिलमिलाने की हमको साइंसी वजह क्या समझ में आई है कि दर्जा हरारत और कसाफत, देखिए यहाँ से है उसका नंबर 1 पॉइंट क्या है इसके अंदर कि हवा के मुसलसल मुतहर्रिक होने, दर्जा हरारत और कसाफत की तब्दीली के बायस फ़िज़ा मुस्तकिल नहीं रहती, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर कि हवा का इन्हिराफ नुमा मुसलसल बदलता रहता है, हवा का इन्हिराफ नुमा मुसलसल बदलता रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, चूँकि आप जब भी साइंसी वजूहात बयान कीजिए का जवाब लिखेंगे तो इसमें कभी भी आप नुकात के तहत लिखेंगे, है ना, पॉइंट डाल के लिखेंगे हाशिए के बाहर। जैसे आपका पेपर है ना, अब पेपर में आप जो है हाशिया ऐसा छोड़ते हैं, तो इसके बाहर से आप जवाब लिखते हैं ऐसे। तो पॉइंट्स भी ऐसे बाहर ही डालना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना, तो पॉइंट्स के तहत लिखना है आपको।
तो 2 पॉइंट हम देख चुके हैं इस साइंसी वजूहात के, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो इन्हिराफ नुमा में तब्दीली के बायस तारे का मजाजी मुकाम और रोशनी मुसलसल बदलती रहती है। फिर आप लिखेंगे आखिरी कि इसलिए तारे हमें झिलमिलाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइंसी वजूहात मुकम्मल हुआ ये। अब देखिए, अब सैयारे क्यों झिलमिलाते नहीं हैं, ये भी समझना है अब हमको, सैयारे क्यों झिलमिलाते नहीं हैं। सिर्फ सितारे या तारे, देखिए दोनों भी एक ही बात है, हाँ। सितारे बोलिए आप या तारे बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ तारे ही क्यों झिलमिलाते हैं, सैयारे क्यों नहीं झिलमिलाते, उसकी वजह देखना है। सैयारे हमें झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत क़रीब हैं। नंबर 1 पॉइंट लिख दिया आपने, राइट। अगर ये आता है एग्ज़ाम में आपको, सैयारे क्यों झिलमिलाते हुए नज़र नहीं आते, तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे यहाँ पे कि ये तारों की बनिस्बत हमसे बहुत क़रीब हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसलिए वो रोशनी के नुक्ते मंबों के मजमूए की तरह होते हैं। नुक्ते मंबे के मजमूए की तरह होते हैं, नुक्ते मंबा नहीं होते हैं। तारे क्या होते हैं, सिर्फ देखिए, तारे सिर्फ होते हैं नुक्ते मंबा, ठीक है, नुक्ते मंबे की तरह नज़र आते हैं। लेकिन सैयारे हमको नुक्ते मंबा के मजमूए, है ना, मजमूए की तरह होते हैं। बात समझ में आ रही ना, मजमूए की तरह, यानी कई नुक्ते मंबा मिल के नुक्ते मंबे का मजमुआ तैयार होता है, तो इस तरह होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया, पहला पॉइंट कि हमसे बहुत क़रीब होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख दिया आपने, रोशनी के नुक्ते मंबों के मजमुए की तरह होते हैं। फ़िज़ाई तब्दीली के बायस इनके कुछ नुक़ात की रोशनी कम और कुछ नुक़ात की रोशनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके मकाम भी तब्दील होते हैं, लेकिन इनकी मजमूई औसत रोशनी और मकाम मुस्तकिल रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी का पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इनकी मजमूई औसत रोशनी और मकाम मुस्तकिल रहते हैं, यानी टोटल उनकी, यानी कि देखिए नुक्ते मंबे का मजमुआ होता है, ये नुक्ते 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 नुक्ते, ठीक है। ये तमाम नुक्तों के मजमुआ जो है वो सैयारा होता है, ठीक है। अब एक की कम हुई तो दूसरे की बढ़ती, ठीक है, इसकी कम हुई तो इसकी बढ़ती, तो इस तरह से, लेकिन उनका औसत रोशनी यानी कि एवरेज रोशनी जो रहती वो मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैयारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है नेक्स्ट, तुलु आफ्ताब यानी सूरज का उफ़क़ पर नमूदार होना है। तुलु यानी सूरज का निकलना है ना, मालूम ना आपको, तुलु यानी निकलना है ना, तुलु यानी नमूदार होना, निकलना। आफ्ताब यानी सूरज है ना, आफ्ताब यानी सूरज, तो तुलु आफ्ताब यानी सूरज का निकलना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, राइट। देखिए, अब तुलु आफ्ताब यानी सूरज का उफ़क़ पर नमूदार होना है, लेकिन जैसा कि शक्ल 6.7 में दिखाया गया है, तो इससे पहले की शक्ल हम देख चुके हैं कि सूरज उफ़क़ से थोड़ा नीचे होता है, तब इसकी शुआओं का कुर्रे हवा में इन्हिराफ होता है और रोशनी की शुआएं ख़मीदा होकर, टेढ़ी होकर, जैसे हमने देखे ये सैयारा था और ये सूरज है और ज़मीन पे जब उसकी शुआएं पहुंच रही तो ऐसी ख़मीदा होकर पहुंच रही है ना, इसको बोलते टेढ़ी, है ना, ख़मीदा यानी टेढ़ी होकर हम तक पहुंचती हैं। इसलिए सूरज हमें उफ़क़ पर नमूदार होने से क़ब्ल ही दिखाई देता है। तो साइंसी वजूहात बयान कीजिए के तहत ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सूरज हमें नमूदार होने से क़ब्ल ही नज़र आता है, सूरज हमें नमूदार, उफ़क़ पर नमूदार होने से क़ब्ल ही दिखाई देता है। क़ब्ल यानी पहले, है ना, क़ब्ल यानी पहले, ठीक है। तो सूरज हमें उफ़क़ पर नमूदार होने से क़ब्ल ही दिखाई देता है। इस तरह ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी हमें सूरज उफ़क़ से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। जैसे हम ये देखिए शक्ल के तहत इसको समझ चुके हैं इससे पहले कि देखिए किस तरह से ख़मीदा होकर शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से ये इसका हकीकी मुक़ाम है, लेकिन
ये ऐसे नज़र आता है, हालांकि अभी वो निकला नहीं है, उफ़क़ पे अभी नमूदार नहीं हुआ है, अभी उफ़क़ पे नमूदार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रोशनी ख़मीदा होकर शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं और हमको ऐसे नज़र आता है कि शुआएं यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूरज उफ़क़ पर नमूदार होने से क़ब्ल ही दिखाई देता है और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी हमको उफ़क़ से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। ये सब इन्हिराफ़ नूर की वजह से होता है बच्चों। ये जितने भी हमने पढ़े हैं आज, पूरा का पूरा उसका जवाब है इन्हिराफ़ नूर। हर सवाल में का जवाब इसमें है इन्हिराफ़ नूर। जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें सब का सब जो है उसका जवाब है इन्हिराफ़ नूर।